All right, so we have Asmita Arya on board. Let's just wait for her to switch on her screen. Hi, Asmita. Hello, hi. I'm sure the ladies have missed you. It has been a while since we saw you on screen. And over to you. There is no reason to delay. You can start with the process. Okay, great. Just a second. Am I audible? Cool. So, hi everyone. First of all, congratulations to all of you, to all the winners. So, today we'll be doing a party glam look. So, you all must have attended my basic makeup tutorial look, in which I taught from the very beginning. So, keeping all those steps in mind, we'll quickly do a glam look today. So, I have thought कि सबको hooded eyes का main issue रहता है. मोस्ट ऑफ द पीपल सफर की हुडेड आईज है तो आई मेकअप कैसा करें. सो आई थिंक आज हम हुडेड आई के अकॉर्डिंग आई मेकअप करेंगे क्योंकि वो नॉर्मल आई पे भी हम कर सकते हैं. सो आई मेकअप विल बी अकॉर्डिंग टू हुडेड आईज विच विल मेक योर आईज लुक बिगर. सो इट विल बी अ टेक्निक फॉर दैट. एंड बाकी हम थोड़ा एक ड्यूई ग्लोई बेस करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट. लेट मी जस्ट पिन माई सेल्फ. Okay, so we'll start with skincare, of course. I have washed my face. So now I'll just apply a toner. This is again from Aroma Magic. So like the previous time I told you all कि सबका skincare according to their skin types होना चाहिए. So अभी जैसे winters आ गई हैं तो most of the people suffer कि dry skin रहती है. तो you can switch your moisturizers to cream based if you feel like कि gel से वो proper hydration नहीं मिल पा रहा है. Also you can use hyaluronic serums which have hyaluronic acids in it so that for extra hydration और वो dryness flaky skin ना रहे. So I'll just stick to my Pond's because I am extremely oily on my nose areas. So I'll stick to my Pond's Super Light Gel Cream. And I just got my cleanup done yesterday. So my skin as such कोई flaky नहीं हो रही इस time. But moisturizing in winters is must before your makeup. Okay. So now the next step is primer, which I'm going to use from Calabar. Now it's a silicone based primer because I have a lot of open pores near my nose area, on my chin, and whiteheads, blackheads का भी रहता है issue. So I'm using a silicone based primer which will help me to level up my skin. ताकि जो मैं base use करूं तो मेरे open pores ना दिखे. You can also use a pore primer for this. Silicone works the same as pore primers. जिनको ये issue नहीं है, they can switch to water based primers और cream based primers. एक illuminating primers भी आते हैं जिससे आपको एक extra dewy glow मिलता है face पे. तो which is a MAC की stroke cream आती है. अब तो Lakme का भी एक नया product आया है Lumi cream करके, again an affordable one. So वो भी हम apply कर सकते हैं इस step की जगह. So yeah, no, it just instantly blurs out my pores and my whitehead blackheads. So now I'll do concealing. For that I'm using a Age Rewind concealer for Maybelline. तो अभी मैं जो concealer use कर रही हूँ, this is high coverage. तो जो मेरा foundation होगा, I'll go for a medium coverage one. Not, of course, not a lighter coverage because we're doing a party look, so I want full coverage. So I'll just directly apply it under my eye area, on my acne marks, wherever I feel like. Okay, so I'm not using a color corrector
रीजन बीइंग क्योंकि आप देख सकते हो मेरी बहुत मेजर पिगमेंटेशन नहीं है, सो अननेसेसरी वो लेयरिंग करने की बात हो जाती है। जिनकी बहुत मेजर पिगमेंटेशन इशू होते हैं कि आपके स्किन कलर से बहुत ज्यादा डार्क आपके डार्क सर्कल्स हैं, सो देन हम कलर करेक्टर यूज करते हैं। अदरवाइज वी विल जस्ट यूज अ concealer which is 1 to 2 shades darker according to your concern कि कितना आपकी problem है. Using a concealer brush, I'll blend it and I'm blending it in a tapping motion. Again, I won't slide it क्योंकि फिर वो मोटिव ही खत्म हो गया. So this is a little yellow undertone concealer. जब भी आप कंसीलर लो तो अपना स्किन का अंडरटोन देख के लेना चाहिए. इफ यू आर पिंक अंडरटोन यू कैन गो फॉर अ लिटिल पीच. और अगर जैसे अब मेरा थोड़ा येलो अंडरटोन है तो मैं येलो करती हूँ बिकॉज येलो एंड ऑरेंज बोथ समहाउ कलर करेक्ट योर ब्राउन प्रॉब्लम्स. मेजरली ऑरेंज करता है वैसे, पर मेरी बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न नहीं था, ज्यादा ब्लैकनेस नहीं थी, तो मैंने थोड़ा येलो टोन में लिया है ताकि मेरी अलग भी शाइन ना करे. So yeah, let me just check in mirror. So I've corrected, concealed my problems. Now I'll switch to foundation. So today I'm using MAC foundation. Now this is medium coverage. You can build it to high coverage as well. So हमेशा buildable foundation लेना चाहिए. बाकी आपको लगता है कि if you need high coverage only, तो you can go for Maybelline Superstay, which is a very high coverage foundation. It instantly covers all your flaws. So I'm just taking it on my back of my hand. And I'll just take a foundation brush. Okay, for the brushes, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही यूज करा है for concealer. So for concealer and for foundation both, we should always buy brushes which are thicker. Like जैसे powder के brush होते हैं ना, ये powder brush है, तो इसके bristles are very soft. This won't help me blend a cream product, a liquid product. So for liquid and cream products, we'll always take a brush which has bristles very tightly packed. Okay, I can feel कि ये दब नहीं रहे ज़्यादा. So both are concealer का छोटा है क्योंकि वो छोटे एरियाज पे मुझे चाहिए होता है अच्छे से करने के लिए, एंड फाउंडेशन का बड़ा है which is to be used on the whole face. So make sure कि जब भी आप फाउंडेशन या कंसीलर ऐसी कोई चीज के लिए लो, be it your primer also if you don't apply it with your hands, so उसके लिए भी ऐसा ब्रश होना चाहिए जिसके bristles are thickly packed. So for my foundation, I'm taking this brush. Now this foundation exactly matches my skin tone. So I'll always match it कि मेरे neck से match होना चाहिए मेरा foundation, क्योंकि mostly tanning हमारे face पे होती है. और जिनकी other way है कि अगर आपकी neck clean है, sorry, आपका face clean है और neck dark है, तो आप face से match करो अपनी neck को. इसको भी मैं tapping motion में ही लगा रही हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ टैपिंग मोशन यूज करो. सबसे ज्यादा लोग गलती यही करते हैं, तभी वो क्रीज लाइंस बन जाती हैं. Just use a mirror. Always cover your ear
and of course your neck. Now this foundation exactly matches my neck, so I'm not overlaying on it my neck also, क्योंकि बिल्कुल merge हो गया है. If you feel like कि आपके neck से थोड़ा different आ रहा है, तो always take your foundation यहाँ तक, ठीक है, ताकि क्योंकि जहां तक भी आपकी neck दिखनी है, तो always cover it. अभी I feel like कि बिल्कुल match हो गया है, तो मुझे नीचे तक प्रोडक्ट अप्लाई करने की नीड नहीं है. थोड़ा बहुत मैं कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगाऊंगी, तो उससे भी वो कवरेज आ जाएगी नेक पे. So I am just blending it using a brush only. वैसे मैं इसके बाद ब्लेंडर भी यूज करती हूँ, बट अभी मैं बुकिंग से आ रही हूँ, तो मेरे सारे ब्लेंडर्स गंदे थे, तो मैंने आई हैवंट वॉश्ड देम. तो इसके बाद यू कैन यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो, सो दैट इट मेक श्योर कि आपको कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो निकल जाएगा. आई डोंट डायरेक्टली यूज अ ब्यूटी ब्लेंडर ऑन माई प्रोडक्ट. उससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट को ही सारा अब्जॉर्ब कर लेता है, सो अननेसेसरली वेस्टेज होती है प्रोडक्ट की. So yeah, I think it's blended well. Always cover your ear till here. कुछ भी unequally लगना चाहिए. Okay, one more tip. If you have smile line issue, ठीक है, अभी तो मैं बोलते बोलते बता रही हूँ आपको सब कुछ, तो जब भी आप अपना बेस कर रहे हो, बिल्कुल बोलो मत. Don't make any expressions. कईयों के fine lines होती हैं on foreheads, around their eye area, and mainly on their around their face. When they smile, तो उनके यहाँ lines बनती है, तो which will definitely appear after your makeup as well. तो मेक श्योर कि आप जितना कम प्रोडक्ट लगा सकते हो उतना कम प्रोडक्ट लगाओ, क्योंकि ज्यादा उनको आप हाइड करने के चक्कर में प्रोडक्ट ज्यादा लगाओगे, तो वो उसमें कलेक्ट हो जाएगा और बाद में और विजिबल होगा. सो इट्स बेटर टू अप्लाई लेस प्रोडक्ट ओवर देयर. एंड वन मोर टेक्निक, जब भी आप लॉक करोगे फाउंडेशन, अब जैसे फाउंडेशन हो गया है, ऑल माय क्रीम प्रोडक्ट्स आर डन, सो आई लॉक इट यूजिंग अ पाउडर. दिस इज अगेन फ्रॉम मैक का ही बेस यूज किया था, मैक का ही कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ. दिस इज वेरी हाई कवरेज. So taking a fluffy brush, this is also very fluffy for powder. So सबसे पहले make sure कि आपकी जो अंडर आईज हैं उस पर फिर से क्रीजेस तो नहीं आ गई. पहले आप ब्रश से उसको अच्छे से कर दो, एंड देन साथ साथ लॉक योर अंडर आई. तो ये आप लूज पाउडर से भी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू अ बेकिंग प्रोसेस. बेकिंग में क्या होता है कि इट इंश्योर्स प्रॉपरली कि आपकी लाइंस तो नहीं बन रही. तो बेक करने के लिए आप लूज पाउडर यूज कर सकते हो. Right now I'm using a compact just to lock it. तो सबसे पहले मैंने अपनी अंडर आईज मेक श्योर करी. नेक्स्ट, जब मुझे लगता है कि मेरी फाइन लाइंस आती हैं अगर, तो अगेन आई विल टैप इट, एंड व्हाट आई विल डू दिस. एंड देन नॉर्मल, जैसे मुंह में हवा भर लेते हैं ना, ऐसे करके, एंड देन लॉक इट. ठीक है, तो दिस इज अ टेक्निक मैं अपने क्लाइंट से भी करवाती हूँ जिनको फाइन लाइंस का इशू रहता है, कि आप ऐसे करो एंड देन पाउडर से उसको लॉक कर दो, तो इट गिव्स अ बेटर लुक. अब मैं पूरे फेस पे ही आई एम लॉकिंग इट विद द पाउडर. और विंटर्स में अगर जिसका बहुत ड्राई स्किन का इशू है, सो डोंट यूज एक्सेसिव पाउडर. बस पाउडर्स अपने अंडर आईज पे और अपने नोज एरिया के अराउंड और अपने चिन और लिप्स के अराउंड यूज करो. दैट्स इट, जिनकी ड्राई स्किन है. So we are done with the base, and now we'll do contour, blush and highlight. So for contour I'm using Hoola Benefit. इसका मैंने ड्यूब बताया था, which is from Wet n Wild. तो दोनों का सेम कलर है, एवरीथिंग फॉर्मूला भी सेम लगता है मुझे तो. एंड हाउ वी डू इट, ऐसा फ्लैट ब्रश लेके, और यू कैन टेक अ फ्लफी ब्रश, फॉर एग्जांपल दिस, एंड आई कैन जस्ट डू लाइक दिस विद माय फिंगर्स, नो, कॉन्टोर करने के लिए. तो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा ब्रश लेने की नीड नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो. तो अभी मेरे प्रोडक्ट के साथ ही आया हुआ था, सो आई विल यूज दिस, एंड फ्रॉम टॉप ऑफ माय ईयर टुवर्ड्स माय लिप I'll just create this line.
So basically I'm creating a shadow जहाँ पे मेरे को लगता है मेरा face broad है, chubbiness है, उसको cut करने के लिए, like my double chin, or I feel like my face is a little broader, so that's why I'm applying it here. For those who feel like जिनका face लंबा है, so you can apply it on your chin and your forehead to make it look shorter. So I'm taking this mirror first. ये मैं अपने चीक बोन पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ से लेकर आ रही हूँ. सो बेसिकली कॉन्टोर ये 3 उसमें होता है, दिस एंड दिस इज द एरिया फॉर कॉन्टोर. बट अब ये तो नहीं कि हर फेस पे हम सब पूरा यहाँ पे ही अप्लाई करेंगे. हम अपने फेस के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे कि हमारी फेस शेप क्या है और कहाँ कहाँ हमें शैडो. Am I visible now? I'm so sorry. I don't know why it got disconnected. So we were on contour. So I was contouring my cheekbone. Okay. Now I'll contour my jawline just to cut my double chin fat. So again, from the end of the ear towards the chin, I'll just make this line. तो जो यहाँ का contour होता है ना, we blend it a little upwards या फिर वहीं पे. We don't blend it downwards because we want to look it ऐसे कि यहाँ पे एक line बने, एक shadow बने. तो वो नीचे blend कर दूंगी तो वो उसका फायदा ही खत्म हो गया. तो इसको हम ऊपर या फिर वहीं पे blend करते हैं. And जो ये jawline वाला होता है, इसको हम नीचे blend करते हैं. Because we are creating a shadow on our fat, which is this double chin. So like this. Okay, so it instantly gives you an illusion of a slimmer face. And virtually तो ये ज़्यादा होता है. सामने से देखने में इतना फर्क नहीं पड़ता, but in your pictures, in your videos, it creates that illusion. So similarly on here also. And very softly मैं वहीं उसको blend भी कर रही हूँ
मैं प्रॉपर एक लाइन नहीं बना रही, क्योंकि मैं लाइन बनाऊंगी तो उसको ब्लेंड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो साथ साथ मैं ब्रश से ही उसको सॉफ्टली ब्लेंड करके प्रेस कर रही हूँ। सिमिलरली ऑन माय जॉ लाइन, blending it downwards. Okay. So now from, I don't require contouring on a forehead क्योंकि मेरा बहुत बड़ा forehead नहीं है. Now for my nose, what I'll do is this is the bridge of the nose, your center, where highlighting is applied. Because ये आपका बाहर का portion है, तो यहाँ हम highlighter लगाते हैं, and इसके दोनों side we'll create a bridge इस line के side पे ऐसे, to give that illusion of a slimmer nose. So like this. Just a second. I'm reminding. Okay, for nose contour, I'm creating two lines besides my bridge, like this. One here, another here. तो जितनी पतली मेरी सेंटर ये नोज की लाइन लगेगी ना, उतनी ही पतली मेरी नोज लगेगी. तो जितना आप इसके साइड पे अच्छे से पैरेलल लाइंस क्रिएट करोगे और आगे उसको लॉक कर देना वी बना के, लाइक दिस. एंड ये आपके थोड़ा आईब्रोज के यहाँ से आनी चाहिए, आर्टिफिशियल लगनी चाहिए कि यहीं से स्टार्ट हो रही है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम आवर आईब्रोज. सो मेक श्योर दिस लाइन लुक्स पतली. अगर ये मोटी दिखेगी तो आपकी नोज फिर और मोटी दिखेगी, तो इसको पतला दिखना चाहिए, तभी शार्प नोज का बनेगा इल्यूजन. Okay, so contouring is done. Next step is blusher. For blusher, I'm using this palette from Forever 52. वैसे I also have from Sugar का ये आते हैं mini, this one. So I'm taking this pink and brown, mixing both of them, and I'll smile and I apply blusher on this area upward उसमें, क्योंकि I feel मेरे chubby थोड़े cheeks हैं, तो I don't want कि मैं अपने apple of the cheeks पे लगाऊं और वो और prominent दिखे. ठीक है, तो the key is to look your make your face look slimmer, which is my personal choice. So I apply it over here. Like this, in upwards motion. अगर मैं इसको अपने apple of the cheek पे अप्लाई कर देती तो मैं और चबी दिखती, which I don't want. Rest is your personal choice. जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लगाओ. A little on my nose, on my chin. I guess this is enough. और blusher थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हो, because by the time it will fade away, which is a good part. Blusher एकदम ऐसे patchy नहीं होना चाहिए, तो blushers हमेशा fade away हो जाते हैं. Okay, next I'll just fix my base and all my powder products basically. So this is not to make your makeup long stay. This is a makeup fixer from NYX. Dewy में है ये, ठीक है. तो इसका काम है जो भी आपने पाउडर प्रोडक्ट लगाए हैं वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए स्किन में. So just like my toner, I'm spraying it. और जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा ना, then I'll apply my highlighter, ताकि हाइलाइटर अच्छे से स्टिक कर जाए फेस पे. So I'm using this highlighter from Sugar, and this is one of the best highlighters, very affordable, और ये कलर भी बहुत अच्छा है हाइलाइटर का. This is number 1 Champagne. Now Champagne is a very good shade, a mix of gold and silver. So किसी भी आउटफिट से आप पे चलेगा ये. I'll just let it semi dry. And taking a highlighter brush like this, again a very fluffy brush because it's a powder product. This is very fluffy. ठीक है, अब आप fan brush भी use कर सकते हो, एक fan type में आता है. Let me see if I have.
काइंड ऑफ ऐसा कुछ होता है, ये थोड़ा एंगुलर है, वो पूरा फैन होता है ऐसे, तो वो भी आप हाइलाइटर के लिए यूज कर सकते हो। आई पर्सनली फील कि इससे जहां लगाना होता है वहीं लगता है, तो इसलिए मैं छोटा ब्रश यूज करती हूँ। तो ऑन माय चीक बोन फर्स्ट, जहां मैंने कॉन्टोर लगाया, ब्लशर, एंड उसके ऊपर हाइलाइटर लगाऊंगी हियर। सो हाईलाइटिंग ऑल माई हाई पॉइंट्स। जब हम साइड पे देखते हैं तो मेरे नोज बाहर है, मेरी चिन बाहर है, मेरा फॉरहेड एंड साइड्स पे मेरे चीक बोन्स, तो वहां वहां हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। On the bridge of my nose, like this, and on my temples, basically above my eyebrows. अब जिनका फॉरहेड बहुत स्मॉल होता है, they can apply it in the center. मेरा थोड़ा सा वाइड है, तो आई एम अप्लाइंग इट साइड्स पे, बिकॉज आई मूव माई फॉरहेड, तो मेरी लाइट यहाँ हिट करेगी on my chin and cupid's bow. अगर मेरा थोड़ा डीप नेक होता तो आई वुड हैव अप्लाइड इट ऑन माय यहाँ कॉलर बोन्स पे भी। ओके, तो साथ साथ अभी हाइलाइटर खोला ही हुआ है, तो मैं अपनी आईज पे भी लगा दूंगी जहां लगाते हैं। सो टेकिंग अ वेरी स्मॉल ब्रश, अगेन अ फ्लफी स्मॉल ब्रश, तो अपने आईब्रो बोन पे, ठीक है, हियर जहां पे आपकी आईब्रो बोन होती है, जहां पे आपका आर्क है, आर्च के नीचे बिल्कुल, एंड हियर एज वेल, और आपकी इनर आई पे। सो ये सारी जगह आपकी हाइलाइटर लगाने की। ये वैसे हम आई मेकअप करने के बाद लगाते, बट एनी वे वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट। सो इससे भी ना थोड़ी आई ओपन अप लगती है। ओके, सो हाइलाइटिंग इज डन। इसके बाद भी आप चाहो तो फिर से मेकअप फिक्सिंग स्प्रे कर सकते हो, इतना नीड नहीं होता वैसे। नाउ वील मूव ऑन टू आवर आई मेकअप। First I'll do my brows using this brow pencil from Sugar in the shade 2. तो जब भी आप कोई भी आईब्रो पेंसिल लेते हो, अब जैसे मेरे बाल है, मेरे बाल बिल्कुल ब्लैक है, तो आई वोंट यूज अ ब्लैक पेंसिल बिकॉज उससे फेक दिखती हैं, तो हमेशा एक टोन लाइटर लेना चाहिए, और वैसे भी इन जनरल गो फॉर ब्राउन शेड्स। तो मैं एकदम ब्राउन नहीं लूंगी, मैं थोड़ा ऐश ब्राउन कलर ले रही हूँ। दिस इज द कलर जो इसके बाहर टिप पे भी दिख रहा है, दिस वन, थोड़ा ये ऐशी ब्राउन कलर है। सो दिस इज क्लोज टू ब्लैक बट नॉट ब्लैक। तो फर्स्ट यूजिंग अ स्पूली, जो इसके बैक साइड पे है, इसे स्पूली बोलते हैं। आई विल कोम माय हेयर इन वन डायरेक्शन। अभी मेरे आईब्रो बने भी नहीं हुए हैं, बहुत टाइम हो गया, तो एक्स्ट्रा हेयर भी काफी है। सो फ्रॉम द सेंटर आई विल स्टार्ट पिकिंग स्ट्रोक्स। नो, और आई एम जस्ट कवरिंग जहाँ पे मेरे हेयर नहीं है। तो टॉप पे मेरे हेयर बहुत कम है, नीचे बहुत डेंस हेयर है, सो वहां मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। एंड मेकिंग दैट आर्च, एंड नाउ आई ब्रश माय हेयर। तो स्पूली के दो काम है, एक तो आपके हेयर को एक डायरेक्शन में करना, और जो एक्सेस प्रोडक्ट लग गया है उसको हटा देना, ठीक है। और जो आगे आगे है, आगे मैं बिल्कुल पेंसिल लगाती, आई वोंट क्रिएट अ ब्लॉक, तो मैं सिर्फ नीचे लगा के जस्ट यूज अ स्पूली, ताकि उससे बस एक शैडो बने ऊपर कलर आता हुआ का, एक वो ब्लॉक क्रिएट नहीं होना चाहिए। अभी थोड़े मेरे बहुत वियर्ड लग रही है आईब्रो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बनवाए। ओके, सो सिमिलरली ऑन दिस साइड, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रही, हल्का सा पीछे से, एंड फिलिंग इन द गैप्स, मेकिंग दैट आर्च। अपनी जो शेप है उसे मेंटेन रखो, ये नहीं कि राउंड कर दिया आईब्रो को। अगर आर्च है तो वहां तक स्टॉप करके एंड मेक दैट एंगल।
एंड देन आगे के लिए नीचे मैं लगा रही हूँ प्रोडक्ट एंड उसी को ही ऊपर ब्रश ऑफ कर दूंगी. Okay, so like this. Now we'll move on to eye makeup. So for that, I'll create an eye base first. So I'm using this concealer, which is from Maybelline Fit Me. तो ये आप कोई भी कलर का ले सकते हो. Try getting in a lighter color because फिर colors pop करते हैं. मेन इसका पर्पस यही है कि जो आपके आई शेडो के कलर्स हैं वो एक आपने लिड पे लगाओगे तो वो नहीं दिखेंगे. तो दिस इज जस्ट क्रिएटिंग अ बेस. अब मार्केट में आई बेस अलग से भी आते हैं तो कोई फायदा नहीं है. आप कंसीलर भी सेम काम करता है. जस्ट यूजिंग माय फिंगर्स. प्रोफेशनली तो लोग आई इससे जो ये कंसीलर है लाइटर शेड का हम अपनी आईब्रो को भी शेप देते हैं प्रॉपर. ठीक है. बट सेल्फ मेकअप में इतना इन डिटेल नीड नहीं होता बिकॉज हम अपने अकॉर्डिंग अपनी ब्राउज बनाते हैं. फिर इफ यू वांट एक बहुत अच्छी शेप देनी है आपको ब्राउ को तो आप इस कंसीलर से शेप भी दे सकते हो. So I just created that base for my eye and using a powder brush I'll first lock it. Again that rule कि जब भी आप कोई लिक्विड या क्रीमी चीज लगाते हो पाउडर से लॉक करना है. तो दिस मेक श्योर कि आपकी जो आई के ऊपर लाइन भी बनती है ना वो कम विजिबल होंगी. ओके. फॉर माय आई मेकअप लेट्स डू अ अभी हम हुडेड आई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आई विल डू अ ब्राउन ब्लैक आई शैडो विद अ गोल्डन शिमर ऑन इट. एंड जैसे मेरी ब्लू जैसे मेरी अब गोल्डन है. मैंने अपने आउटफिट देख के बता रही हूँ कि मेरा आउटफिट में गोल्डन है सो आई एम डूइंग अ गोल्डन शिमर. आपके आउटफिट में सिल्वर हो यू कैन डू सिल्वर बेबी पिंक. तो जो शिमर्स होते हैं ना अगर आप लाइटर कलर के यूज करोगे तो इट विल मेक योर आईज लुक बिगर. अब यही आप डार्क कलर के यूज करोगे. अगर मैं ब्लू ड्रेस है और ब्लू ही आई मेकअप कर दूं तो मेरी आई छोटी लगेगी. ठीक है. जो कि मेरी आई का बहुत अच्छा खासा स्पेस है लेकिन वो मेरी आई को बड़ा नहीं दिखाएगा जितना लाइटर कलर्स दिखाएंगे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ ब्राउन टोन एंड गोल्डन शिमर के साथ आई शैडो एंड आई विल अप्लाई अ ब्लू कोहोल मतलब ब्लू काजल लगा लूंगी जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट विद माय ड्रेस. ठीक है. सो आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी पैलेट. ठीक है. दीज आर माय कलर शेड्स. सो ऑल दोज हु कैन इन्वेस्ट ये बहुत वन टाइम पैलेट है. लाइक इसमें सब कुछ है. ऑल योर फॉइल शेड्स. जो फॉइल शेड्स होते हैं ना वो शिमर से बेटर होते हैं बिकॉज जैसे अब ये कलर है तो इसका इंस्टेंटली पिक आ जाता है. आप देख रहे हो बहुत अच्छा इसका इंटेंसिटी होती है. तो इसमें सारे मैट्स भी हैं और गोल्ड ये सब भी है. आई मेकअप आई एम टेकिंग अ फ्लफी ब्रश फर्स्ट. मैं आपको ब्रशेस बता देती हूँ. एक हम फ्लैट ब्रश लेंगे एक फ्लफी ब्रश और एक फ्लफी ब्रश और लूंगी. आई एम टेकिंग दिस बिगर फ्लफी ब्रश. ठीक है. Just dust it off. तो ये 3 ब्रशेस ले रही हूँ मैं जस्ट बिकॉज आई एम गोना यूज अ डिफरेंट कलर शेड. तो फर्स्ट आई विल टेक द मीडियम फ्लफी वन. मेन हमें 2 ही ब्रश चाहिए होते हैं एक फ्लफी एक फ्लैट. तो अभी आई एम गोइंग विद दिस शेड. ठीक है. ये वाला शेड और ये वाला शेड और ये ब्लैक. तो मैट्स में मैं ये 3 शेड उठाऊंगी. ठीक है. नाउ पहले मैं ये वाला शेड अपनी कट क्रीज में बेसिकली जो मेरी क्रीज लाइन है व्हेन आई ओपन माय आई तो जो मेरी ये लाइन बनती है ना इस पे पहले मैं एक क्रीज का कलर शेड रखूंगी. ठीक है. और उसको ब्लेंड करने के लिए मैं एक लाइटर शेड यूज करूंगी. सो क्रीज का आई एम डूइंग विद दिस कलर एंड उसको ब्लेंड करने के लिए आई एम यूजिंग अ लाइटर शेड. तो पहले डार्क ब्राउन कलर लेके
I'm just putting it on my crease. मैं मिरर में देख के करूंगी. अब जिनकी हुड आइज होती हैं, वो जो अपनी आई ओपन करते हैं तो उनकी ये क्रीज लाइन जहां बनती है ना, वो बहुत नीचे होती है, तो उनका आई स्पेस ही बहुत कम होता है. तो वो एक फेक क्रीज क्रिएट करेंगे. जहां उनकी लाइन बन रही है उससे ऊपर इस कलर को पुट करेंगे, क्योंकि इस कलर का काम क्या है, एक डेंस आपकी आईज को दिखाना. सपोज अगर मेरी यहाँ क्रीज लाइन बन रही है तो मैं थोड़ा उसको यहाँ रखती हूँ ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली एक फेक क्रीज बना देता है. और साथ साथ ही मैं थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी कर रही हूँ उसको. एकदम प्रोमिनेंट लाइन नहीं बनानी मुझे. ठीक है, तो ये कलर मैंने अपनी क्रीज पर रखा. एंड यूजिंग द लाइटर शेड फ्रॉम द सेम ब्रश, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट अपवर्ड्स. ठीक है, लाइक दिस. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कहीं भी वो हार्श लाइंस ना दिखे, सब ब्लेंडेड लगे. अब ब्लेंड देख रहे हो मैं कितना दूर से ब्रश को पकड़ रही हूँ, तो जितना दूर से हम पकड़ूंगी ना उतना ही लाइटर उस पर प्रेशर पड़ेगा, उतना अच्छा ब्लेंड होगा. इफ आई होल्ड इट फ्रॉम यहाँ से तो बहुत प्रेशर पड़ेगा और ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से. ठीक है, लाइक दिस. अब मुझे लग रहा है ठीक है, इतनी लाइन नहीं बन रही. और एक साफ ब्रश लेके मुझे लग रहा है थोड़ा आगे प्रोडक्ट पता चला गया है, तो आई जस्ट वाइप इट ऑफ एक क्लीन ब्रश से. ठीक है, इस जगह पे बहुत आगे तक नहीं जाना चाहिए, थोड़ा पीछे पीछे रखना चाहिए, नहीं तो बहुत फैला हुआ लगता है. Now similarly on the other eye, taking the dark brown shade first. एंड मैं एक सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे ब्रश को चला रही हूँ और एक वाइपिंग मोशन. ठीक है, दो ही मोशन में यूज कर रही हूँ ताकि वहीं वहीं रहे. एंड नाउ यूजिंग द लाइटर शेड, blending it. ठीक है, like this. अब मैं चाहूँ तो मैं पूरी अपनी इस लिड पे एक शिमर शेड लगा सकती हूँ. ठीक है, बट व्हाट आई विल डू है, यहाँ पे थोड़ा मैं एक ब्लैक शेड लगाऊंगी ताकि एक आउटर कॉर्नर में एक डिफरेंट कलर दिखे. ठीक है, ऐसे यू कैन प्ले विद कलर्स. नाउ इफ आई वांटेड टू डू अ पिंक मेकअप, पिंक आई मेकअप, तो मैं लाइट पिंक और थोड़ा डार्क पिंक से अपनी क्रीज बनाती एंड पीछे शायद थोड़ा पर्पल डाल देती जस्ट टू क्रिएट दैट डेप्थ, और आगे मैं एक शिमर लगा देती. तो यू कैन ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर से कर सकते हो. आई एम टेकिंग द बिगर फ्लफी ब्रश और सबसे लाइटर शेड लेके, सबसे आखिरी वाला लाइटर शेड लेके मैं सबसे टॉप पर सबको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से. सो यू कैन यू सी मैं डार्क से लाइट जा रही हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि एंड में कोई भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए. जो एक लोगों की बहुत प्रोमिनेंट लाइन बनती है ना ऊपर आई मेकअप पे, तो वो नहीं बनना चाहिए. दैट डजंट लुक नाइस. ठीक है, सो नाउ इट्स क्वाइट ब्लेंडेड. कोई मुझे हार्श लाइन नहीं दिख रही और हर कलर दिखना चाहिए. अगर मैंने डार्क शेड लगाया तो इट इज विजिबल, फिर लाइटर पे जा रहा है, ये नहीं कि सब आपस में मर्ज हो गए. नाउ आई एम गोना पुट ब्लैक in the corner. For that I'm using a small brush, again a fluffy one. तो ब्लैक लेके और बिल्कुल अपने आउटर कॉर्नर पे नीचे नीचे. अब ब्लैक को जितना आप कम लगाओगे ना उतना बेटर है, क्योंकि इसको ब्लेंड करना इज नॉट इजी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड माय ब्लैक विद अ डार्कर ब्राउन. किसी भी एक डार्क शेड को ब्लेंड करने के लिए उससे एक लाइटर शेड से हम उसको ब्लेंड करते हैं. तो अभी आई एम जस्ट पुटिंग ब्लैक. Now I'll again take that brown color and blend this black.
तो बेसिकली 70 या 30% रेशो होना चाहिए. 70% शुड बी योर ग्लिटर जो आगे लगाएंगे एंड 30% शुड बी योर आउटर कॉर्नर. ठीक है. मेक श्योर दोनों इक्वल है. अब ब्लैक को ब्लेंड करने के लिए अगेन टेकिंग दैट ब्रश जिसमें मैंने ब्राउन लिया था एंड डार्क ब्राउन शेड लेके जहां जहां ब्लैक के एजेस हैं बस वहीं वहीं आई अप्लाई दैट डार्क ब्राउन जस्ट टू मेक श्योर वो ब्लैक मेरे ब्राउन सा ब्लेंडेड है. So can you see धीरे धीरे it's fading out. Okay, so now this is done. अब आगे हमने शिमर शेड अप्लाई करना है. इसे हम हाफ कट क्रीज भी बोलते हैं. नाउ कट क्रीज इज वेरी प्रोमिनेंट कि जिसमें हमें प्रॉपर एक लाइन दिखती है बनती हुई. सो वी आर नॉट डूइंग दैट परफेक्ट कट क्रीज. उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस टेक्निक चाहिए. तो अभी हम सॉफ्ट कट क्रीज करेंगे which is easier. Now I'm taking a shimmer shade. Let's just take this shade. ठीक है. I'm taking it on my finger. Best way to apply any shimmer is with your finger क्योंकि brush नहीं उठा पाता. तो like this, I'll just swipe it. और ये सिर्फ मेरे जहाँ lid है, जहाँ मेरी crease line बन रही थी, उसके अंदर रहेगा. अब now in the case of hooded eyes, जो उन्होंने fake crease बनाई थी, उसके अंदर रहेगा. Like this. ठीक है. अब यहाँ मैं कोई भी कलर अप्लाई कर सकती हूँ. डार्क गोल्ड, ब्राउन में मतलब ग्लिटर में ही. So this is the place where you apply glitters या shimmer shades या foil shades. ठीक है. Like this. और जितने भी hooded eyes वाले हैं they should always do this eye makeup क्योंकि आगे शिमर लगा के आपकी आईज और वाइड ओपन लगती है. Okay, so like this. And now again taking this flat brush जो हमने लेना था, I'm just mixing brown black and I'm just making sure कि जो मेरा shimmer shade है वो black के साथ थोड़ा blended लगे. ये ना हो कि दोनों अलग अलग दिख रहे हैं. तो in short सब कुछ blended लगना चाहिए, कुछ भी अलग अलग ना लगे. और बहुत हल्के हाथ से मैं ये कर रही हूँ. ठीक है. Now you can't see any lines, anything. सब कुछ blended है आपस में. और अलग अलग टोन्स दिख रहे हैं डार्क से लाइट जाता हुआ. कई बार थोड़ा सा होता है कैमरा में थोड़ा ये मुझे पैची दिख रहा है बट सामने से मुझे नहीं दिख रहा वैसे. कई बार कैमरा कैप्चर ऐसे करता है. ठीक है. सो आई मेकअप इज डन एंड अब हम लाइनर लगाते हैं. अब इसके ऊपर आई कुड हैव अप्लाइड अ शिमर. अब जैसे मुझे ग्लिटर लगाना है, जो ग्लिटर्स आते हैं लिक्विड ग्लिटर्स आते हैं, जैसे आई हैव दिस वन फ्रॉम फॉरएवर 52. तो ये लिक्विड ग्लिटर है. तो अगर मुझे और इसको पॉपी बनाना है और थोड़ा ग्लिटरी बनाना है तो जहां पे मैंने शिमर शेड लगाया है उसके ऊपर आई अप्लाई ग्लिटर. तो ऑलवेज जब आप ग्लिटर भी लगाओ तो ये नहीं कि शिमर शेड लगाया या ऐसे ग्लिटर लगा दिया, ये नहीं करते. हमेशा शिमर लगाओ उसके ऊपर ही ग्लिटर लगता है. तो अभी मैं फटाफट आईलाइनर लगा रही हूँ. दिस आईलाइनर इज फ्रॉम कलर एसेंस. वेरी अफोर्डेबल और वेरी गुड. बहुत अच्छा है ये. मैं पर्सनली भी यही यूज करती हूँ. इट कॉस्ट 150. आई डोंट थिंक सो अच्छा लाइनर इतने में आता है. Now starting from the center, never start from the beginning. ठीक है. पहले तो मैं बहुत पतली सी लाइन क्रिएट कर रही हूँ. ओके.
I'll just create a very thin line on both sides. जिनकी hooded eyes हैं वो बहुत पतला लाइनर लगाएं, नहीं तो जो हमने इतनी मेहनत करी है वो दिखेगी नहीं. So it's a task एक हाथ से लगाने में. Now I'll create the wing liner. मैं हमेशा अपनी आईब्रो का एंड देखती हूँ और उसके टुवर्ड्स उसको विंग को ले जाती हूँ. तो आईब्रो का एंड देख के वहां पे एक विंग ऐसे लाइन बनाओ एंड देन मर्ज इट विद योर eyeliner. And it comes with practice. जितना मैं easily बोल रही हूँ उतना easy होता नहीं है. Okay, so yeah. So now I'll apply a blue kajal. This is from Recode. Again, very affordable and very good pigmentation. तो आई मेकअप ऊपर का डन है. अब मुझे बिल्कुल थोड़ा कहीं से पैच नहीं दिख रहा, सब कुछ ठीक दिख रहा है. अब ब्लैक काजल मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज इट लुक्स कि मेरी आंखें छोटी लगती है ब्लैक लगा के. तो आई वुड हैव गॉन फॉर वाइट और एनी कलर्ड काजल. एंड थोड़ा सा मैं इसको नीचे लगाया है because I'm going to blend it with an eyeshadow. आप चाहो तो सिर्फ अपनी वाटर लाइन में लगाओ, but I always apply a shadow. तो अभी मेरी पैलेट में ब्लू शैडो नहीं था तो मैंने सिर्फ एक खाली ब्रश लेके उस काजल को ही ब्लेंड कर दिया साथ साथ, क्योंकि अभी वो ड्राई नहीं हुआ था. ठीक है, like this. I'm taking a very precise brush. और जिनकी हुडेड आईज हैं वो तो ना ही लगाएं डार्क कलर का काजल, नहीं तो छोटी लगती हैं आंखें. So yeah. Now I'll again take a highlighter brush and shimmer सा शेड लेके थोड़ा सा आगे लगाऊंगी यहाँ ताकि थोड़ी ओपन अप आई दिखे, हल्का सा नीचे को ताकि थोड़ी ओपन दिखे आई. So like this. Now we'll move to lipper. I'm using this Nykaa का liquid gloss, मतलब liquid lip shade ही है ये.
Now you can also use a lip liner जिनको आदत है लाइन करने के लिप्स. I don't use क्योंकि liquid lipsticks में इतना नीड नहीं रहता. When you use a bullet lipstick तो आपको होता है कि आप अपने लिप को लाइन करो and then fill it. Take it like this. So yeah, you are done. अब थोड़ा एक्सेसराइज करके आउटफिट पहन के एक्सेसराइज कर लोगे, बिंदी लग जाएगी तो एक थोड़ा कंप्लीट लुक लगेगा. अभी बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है काजल थोड़ा ज्यादा लग गया है, मोटा, बट इट्स ओके. सो दिस इज द एंटायर लुक. तो हम काजल अपने ड्रेस के आउटफिट के अकॉर्डिंग वी कैन स्विच. पर्पल लगा सकते हो, ग्रीन एंड ब्राउन लगा सकते हो इफ यू डोंट वांट टू यूज ब्लैक बिकॉज इट मेक्स योर आई लुक स्मॉलर. So that was the whole makeup. Now let's take your doubts. Give me a second. I'll be back. Just a second. Okay. So let's take your questions now. Now, party makeup में ना base तो सब वही रहता है. Only you can play with your eye makeups. थोड़ा colorful में कर लिया. अगर और बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने आई मेकअप बहुत लाउड कर रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर न्यूड लिप्स. एंड जब भी आपको रेड लिप यूज करना है या डार्क कलर का लिप यूज करना है तो ऑलवेज डू योर आई मेकअप वेरी लाइट. So you guys can ask your questions directly to Ankit, Asmita. So please go ahead. Hello. Yes, Prasashti. Hello. Good afternoon. Yeah, Pallavi here. Just raise your hand. I'll go one by one. Yes, Prasashti, you can unmute yourself. Yeah, hi, Smita. Hello. Thank you so much for a wonderful tutorial. Thank So I had a few questions. The liner that you shared, right? So I couldn't catch its name. So because what happens is I have been using some pen liners, but after some time they fade away a bit. Whereas liquid liners are better, they give more depth and stay in for a longer time. So what do you they're more suggest? intense black. Yes, they are Yeah. more intense. So I use Color Essence even on my clients because I feel it's got Color Essence is the brand name. ठीक है. Okay. First of all, it's very affordable, and other thing is कि टिप बहुत फाइन है, बहुत फाइन, बहुत easily ring बन जाता है. Okay. Yeah, Thanks. this is very good. And other thing is while I use liquid lipsticks, so after some times it gets too much sticky. So if I press my lips together, it gets so sticky that sometimes it chaps. So what should I do for the same? Okay, so first of all, when you use a liquid lipstick, never do this. ये चीज नहीं करनी चाहिए जब भी आप लगा रहे हो when it's wet, ठीक है. और always apply a very thin layer of it. आपने देखा मैंने single layer करा है. I won't layer it 1 or 2 times. क्योंकि जितना आप लेयर करोगे वो उतनी चैपी होगी बाद में फिर. तो जैसे आप मैंने एक बार लगाया है, मेक श्योर कि वो एक ही बार में ढंग से लग जाए क्योंकि जितना लेयर होती है फिर वो चैप करता है. आई नो. Right. या सो मेक श्योर आप ये चीज नहीं करना होता. अपने लिप को आपस में चैप मत करो व्हेन यू अप्लाई लिक्विड लिपस्टिक. मतलब until it's dry. फिर ड्राई होने के बाद आई डोंट थिंक इतना होता है. तो फर्स्ट मॉइस्चराइज योर लिप्स अच्छे से, ठीक है, while doing your entire face makeup. तो उससे पहले ही आप अच्छे से लिप बाम लगा लो and then end में you apply the lipstick. So I think it will help. Yeah. Thanks. Yes. Yes, Dr. Amrit Pal. You can. Hi, ma'am. Good afternoon. Hi, good afternoon. Ma'am, मेरे जो question है that is regarding the blusher. That do we have to choose the blusher according to the like our skin tone or like if we are fair enough? So do we have to use it like a lighter pink or a brighter one?
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगी कोई एक बेसिक सा शेड होता है जैसे पिंक, पीच और ब्राउन, ये 3 ही होते हैं ब्लशर में जो हम यूज करते हैं. सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर हाँ. मेकअप. इफ यू वांट, यू आर डूइंग अ ब्रॉन्जी लाइक ब्राउन लिपस्टिक एंड ब्राउन शैडोज, सो आई विल से गो फॉर अ ब्रॉन्ज वन, ठीक है. और एल्स जस्ट डू पिंक और पीच लुक्स फाइन. अब जैसे मेरे पास ये पैलेट है, तो जैसे ये वाली पैलेट है, ठीक है. तो अब इसमें मेरे हार्डली सब यूज होते हैं. आई जस्ट यूज दिस एंड दिस, ये बोथ जो Okay. दो पिंक और ब्राउन है. तो ये बाकी सारे मेरे यूज भी नहीं होते हैं, इसमें से 2 ही शेड यूज होते हैं. तो कोई भी एक न्यूट्रल सा पिंक हो गया, पीच हो गया, आप यूज कर सकते I हो. have this one. So this looks so horrible on me. I just don't know why. I just bought it recently. हाँ, So, कई ना पिगमेंट होते हैं, बड़ा नियॉन टच होता है उसमें, जैसे पिंक हो गया या हाँ. ऑरेंज हो गया ना, बहुत नियॉन सा होता है, तो वो थोड़ा अजीब प्रोमिनेंट दिखते हैं. तो थोड़ा Okay. सटल लो आप. Such a- Fine, fine, fine. And then what about my forehead? It looks so broad, like it's very big. So the contouring part, how would I'll go with the contouring for my forehead? ओके, सो फॉर फॉरहेड ना मैंने बताया नहीं, मैं दिखा देती हूँ. जैसे अभी कॉन्टोर है, तो जैसे हमने यहाँ का वहीं ब्लेंड किया था, जॉ लाइन का नीचे ब्लेंड करते हैं, तो फॉरहेड का आपके हेयर लाइन में ब्लेंड करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लगाया, लाइक दिस वे आई अप्लाइड इट एंड आई विल ब्लेंड इट अपवर्ड्स, ठीक है. तो जितना आपको एक शैडो दिखाना है अपना, जैसे आपका काफी बड़ा फॉरहेड है, तो आप इस जगह पे यहाँ अप्लाई करके एंड जस्ट ब्लेंड इट अपवर्ड्स. Upwards. Okay. Yeah. Thank you so much. वेलकम. यस अंशु. Hello. हेलो. So I have a question regarding the mascara. What type of mascara should we use for our makeup? Because I think Okay, I skipped. I guess मैंने mascara Yeah. लगाया. Okay, sorry. Wait. Okay, so मैंने रखा हुआ है, मैं भूल गई. So this is from Forever 52. ठीक है. तो अभी रिसेंटली मैंने Forever 52 में इन्वेस्ट करा है काफी प्रोडक्ट्स में, because there was a contest for which I took part in. So I really found it good. इसका आता है Excel Pro. तो एक ना हमेशा ऐसा बॉन्ड लो लाइक दिस, जो थोड़ा पतला हो. एक किसी के ना बहुत ट्विस्टेड से बॉन्ड्स आते हैं, ऐसे आगे से पतला होता है फिर ब्रॉड होता है. तो गो फॉर अ स्लिम बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है. तो आई तो नॉर्मल है, हमेशा ना ऐसे ऐसे करके नो ब्रूज इट. एक तो हम ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं, उससे ना आता नहीं है उतना इफेक्ट मस्कारा का. yeah, that's true. That's what happens with me. Why it is not that visible. Okay. कई लोगों की लैशेस ना बहुत स्ट्रेट भी होती हैं, सो यू कैन यूज दैट कर्लर जो आते हैं, एक टूल आता है कर्लिंग टूल. सो इट्स अ लिटिल स्केरी फॉर मी, मैं नहीं यूज करती. बट जिनको फ्लैट, जिनकी बहुत ज्यादा फ्लैट ऐसे स्ट्रेट आती है होगी ना आई लैशेस, तो यूज दैट कर्लर थिंग एंड देन अप्लाई द मस्कारा. ओके, मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि सारा पाउडर आपकी लैशेस पे गिरा होता है. एंड अभी आई लैशेस, फेक आई लैशेस भी लगाते हैं पार्टी लुक में, which अभी मैं अप्लाई तो नहीं कर रही. बट जब आप फेक लैशेस लगाओ, तो मैं सजेस्ट कर देती हूँ, ग्लू आती है पैक की, PAC इज द ब्रांड. सबसे अच्छी और अफोर्डेबल उसी की ग्लू है. तो PAC की ग्लू आती है. एंड लैशेस यू कैन गो फॉर आई मैजिक के आते हैं, और हिलरी रोडा आता है Amazon पे. एक मैं बताती हूँ Amazon की आती है CILIAOS, सिलियोस करके ऐसे नाम होता है. तो उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है. बेसिकली ऑल द मिंक लैशेस, जो मिंक लैशेस होती हैं वो सब अच्छी होती हैं, वो फेक नहीं लगती. तो जब भी हम आई लैशेस लगाएंगे, सब कुछ ऑल मेकअप डन, उसके बाद आप आई लैश लगाओगे एंड उसके बाद आप मस्कारा से अपनी नेचुरल लैशेस को उससे यू नो उन दोनों को मर्ज करोगे. तो मस्कारा बाद में लगता है आई लैशेस के. Okay. And my other question I have is, actually I missed that shade of your lipstick. That's really nice. So just wanted to know again. Okay, the lipstick is from Nykaa, All Day Matte, in the shade Soul Sister. Soul System. Yeah, इसकी बहुत अच्छे लिपस्टिक्स हैं. इसकी भी Maybelline Superstay भी, ये हटते भी नहीं है. एंड जिनको वो चैप का इशू था, तो यू कैन ट्राई दिस वन. Maybelline Superstay थोड़ा चैप करता है बिकॉज इट्स वेरी थिक, बट वो हटती बिल्कुल भी नहीं है.
Okay. Thank you. That's it. Welcome. Yes, Deepmala. Hello, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I'm visible. Yes, please ask your question. Okay. हाँ मैम मैं पूछ रही थी एज यू कैन सी मेरा नोज भी काफी बेटर है एंड मेरे कोई ज्यादा चीक बोन्स भी हेवी नहीं है एंड ठीक ये सब जो मैम ये सब भी काफी मतलब ठीक ठीक है एंड फॉरहेड भी बहुत बड़ा नहीं है तो मैम मुझे क्या फिर वो कॉन्टूरिंग बहुत ज्यादा जरूरत है देखो, जरूरत किसी भी चीज की ऐसे नहीं है कि आपको ये मैंडेटरी है कि ये स्टेप लगाना है, ठीक है। बस एक स्टार्टिंग स्किन केयर स्टेप्स जो होते हैं, प्राइमर हो गया, यहाँ तक ये मैंडेटरी स्टेप्स होते हैं। उसके बाद इट्स ऑप्शनल फॉर यू, व्हाटएवर यू फील लाइक कि आपको अच्छा लग रहा है तो लगाना है, ठीक है। तो फॉर यू आई थिंक ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं यू नीड कॉन्टोरिंग, बट इट्स जस्ट क्लब्स योर फेस, यू नो, इट गिव्स अ बेटर डायमेंशंस ऑन योर फेस, तो वो पर्पस होता है। सो या मैम मोस्ट ऑफ द जैसे कोई प्रोफेशनल ऐसा फोटो शूट ये सब में ज्यादा अच्छा दिखता है तो उस टाइम कर लेना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, या सो अभी हम पार्टी लुक कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने प्रॉपर बताया कि अच्छा इससे थोड़ा डायमेंशन आता है, इसलिए। मैम एक और बात था, आपने बोला ना मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग को करना चाहिए, जैसे हमने आई लुक बहुत बोल्ड किया है तो लिप्स थोड़ा न्यूड ही रखना चाहिए, बट ऐसा होता है ना कि न्यूड लिप्स मतलब ऑलवेज मतलब उतना फेस को एनहांस नहीं करता है, जैसे रेगुलर तो ठीक है बट जैसे पार्टी है, अब हमने कुछ बहुत अच्छा एथनिक हो या वेस्टर्न भी हो जो भी, हाँ, वो हाँ, सबकी तो प्रेफरेंस है। वो कई लोगों को न्यूड नहीं सूट करता फेस पे, या उनके पर्सनली प्रेफरेंस नहीं होती, तो यू कैन गो फॉर शेड्स लाइक दिस ना। अब मैंने भी तो हेवी आई मेकअप ही करा है, दिस इज हेवी फॉर मी, ठीक है। सो आप ऐसा न्यूड में जा सकते हो, दिस इज नॉट न्यूड बट दिस इज नॉट डार्क ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा बेसिक शेड में जा सकते हो। तो आई वोंट से कि आप इस साथ रेड लगा लो, क्योंकि वो दोनों ही फिर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ब्लू भी है आईज में और भी कलर्स हैं, फिर रेड भी हो जाएगा एक और, तो थोड़ा बैलेंस कम रहेगा। तो गो फॉर लाइक नॉर्मल शेड्स लाइक दिस पिंक, पीच, ऐसे में जा सकते हो अगर न्यूड में नहीं जाना तो। मैम जैसे भी कुछ दिन पहले एक वेडिंग था तो मैंने वही किया था कि बहुत हेवी ग्रीन एंड गोल्डन का आई मेकअप किया था, क्योंकि मेरा आउटफिट ग्रीन था, मतलब मैम वो बॉटल ग्रीन नहीं, थोड़ा पैरेट ग्रीन के आसपास का, ठीक है मैम। तो मैंने उसमें वो ऑरेंज एकदम लाइट ऑरेंज कलर का लिपस्टिक लगाया मैंने, मैम वो बिल्कुल भी अच्छा, बाद में जब मैंने उसको वाइप करके मैंने रेड लगाया तो बहुत अच्छा मैम आ गया। तो फ्रेंड्स ने वही कहा कि तुम ये लगाइए मैम, ये होता है ना कि मैम रेड लगाने से एक बहुत ज्यादा तुरंत खुल के बहुत अच्छा आ जाता है। मेरा लिप का टोन है, दिस इज मोर ऑफ अ रोजी वाइन टाइप, थोड़ा तो लाइटर में है, मतलब डार्क भी नहीं है, तो डोंट गो फॉर नियॉन कलर, जैसे आपने अभी भी लगाया है ना, दिस इज अ लिटिल थोड़ा ब्राइट पिंक है, यू अंडरस्टैंडिंग, ब्राइट और एक थोड़ा सटल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप ऑरेंज बोल रहे थे कि आपने लगाया, तो वो भी थोड़ा पॉप कर रहा होगा, मतलब जो नियॉन टाइप के शेड होते हैं थोड़े पॉप करते हैं, थोड़ा सटल में लगाओगे तो दिस वोंट पॉप। अब आप मेरा लिप शेड देख रहे हो, दिस इज नॉट पॉपिंग, दिस इज वेरी सटल। तो न्यूड जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही ब्राउन लाइट कलर हो, न्यूड डजंट मीन कि बिल्कुल लाइट दिखे ही ना, वो चीज नहीं है, तो ऐसे सटल शेड्स में भी जा सकते हो। मैम एक और चीज होता है ना, आपने वही कलर लगाया तो दूसरा लुक आ रहा है, मैं लगाऊंगी तो चेंज हो जाता है, ये भी होता है मैम समटाइम्स, मेरे फेस पे कुछ और दिखता है तो वो आप पे वही कलर दूसरा जो दिखेगा। आपको लिप शेड का अगर एग्जैक्ट कलर चाहिए ना, तो जब आप फाउंडेशन लगा रहे होते हो तो लेट इट कम ऑन योर लिप्स, ठीक है। फाउंडेशन आपकी लिप्स पे अगर लगेगा ना, तो वो आपका लिप्स का कलर एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपके लिप्स डार्क हैं, लाइट पिंक हैं, जो भी हैं, क्योंकि फाउंडेशन की लेयर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इससे लिपस्टिक लॉन्ग स्टे भी होती है, ठीक है। तो जब आप फाउंडेशन जब मैं भी लगा रही थी तो मेरे लिप्स पे आ रहा था, विच इज ओके, तो उससे क्या होता है, प्रॉपर कलर आता है लिपस्टिक का, ठीक है। Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome. Yes, Deepa. Yeah, hi Asmita. Hi. I wanted to ask regarding the kajal. Actually, whenever I apply black kajal, my eyes look a little smaller. So what should I do in that case? Don't apply black kajal. Always go for nude. Nude kajal भी आता है, पैक का आता है, white kajal भी आता है, ठीक है। तो वो काजल लगाओ और उसके नीचे ना आई शैडो से स्मज कर लो उसको,
जैसे ब्राउन शैडो से या फिर पीच. So you can see my face and eyes. What color of kajal should I apply? See, you can go for either white and nude, क्योंकि जिनका थोड़ा डस्की कॉम्प्लेक्शन होता है ना, उनको मैं बोलूंगी कि white मत लगाओ, go for nude, Okay. थोड़ा स्किन कलर का जो काजल होता है, but you can go for either ways. और आपकी जैसे hooded eyes हैं, तो जैसे आप देखो क्रीज लाइन, देखो आपके क्रीज लाइन के नीचे बहुत कम स्पेस विजिबल होता है, तो आप ओपन करते हो आई, Yes. ठीक है, तो यू क्रिएट दैट फेक क्रीज, तो इट लुक गुड. Okay. Thank you. वेलकम. यस अंकिता. Hi, good afternoon. I had two questions. Number one being, how do I, for my kind of face shape, how do I contour? And number two is, how do I put the highlighter for my kind of face shape? See, highlighter is the same for all shapes of faces, क्योंकि उनका highlighter high points हैं, तो हमारे cheekbone हो गया, your forehead, आप forehead के temples पे लगाना, not in the center, because you have a wide forehead, ठीक है. तो बाकी वही सेम नोज पे हो गया, चिन पे हो गया, जहां मैंने लगाया सेम वहीं पे लगेगा. बाकी contour, for that you can do on your forehead because a little wider than your whole face, ठीक है. बाकी आपको इतनी as such need नहीं है contour की, even just a little you can do here, बाकी जॉ लाइन पे नीड नहीं है, तो या एंड नोज पे कर सकते हो. इट जस्ट गिव्स द डेफिनेशन, इट्स नॉट मैंडेटरी, सो इट्स जस्ट पर्सनल चॉइस. Thank you so much. वेलकम. यस पल्लवी. Hello. हेलो. Yeah. Hi, good afternoon. हेलो. हाय. Ma'am, I have eye bags. So whenever I do makeup, they looks very prominent. So what can I do for it? Okay, so you have a little dusky complexion, so I would say first color correct with orange, ठीक है. अगर आप कलर करेक्ट नहीं करोगे तो आप जितना भी डार्क कंसीलर यूज कर लो, बिकॉज जो आपका फाउंडेशन शेड होगा, इफ यू गो विद योर शेड, ठीक है, तो डस्की कॉम्प्लेक्शन पे हमेशा ऑरेंज से कलर करेक्ट करते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा डार्कनेस है वो कट हो जाए, ठीक है. तो फर्स्ट करेक्ट विद ऑरेंज, देन यूज अ डार्कर कंसीलर टू न्यूट्रलाइज इट, एंड देन अ फाउंडेशन ऑफ योर स्किन कलर. Okay. और एक टोन अप भी कर सकते हो, इफ यू प्रॉपरली कंसील एंड करेक्ट योर फेस, नो, तो आप एक टोन अप भी जा सकते हो, just to give that brightness on your face. Yeah. Okay. And I have one more question. I have oily skin complexion. So whenever I apply kajal, it gets spread easily. It's smudged. Then which type of kajal should I use, or what can I do to avoid the smudge? ओके, सो अगर कोई भी काजल पेंसिल नहीं स्टे करती, जैसे तो लैक्मे का कोहोल पेंसिल्स जो होती हैं जिनकी आती हैं, एक होता है नॉर्मल काजल जो हम ये आइकॉनिक, कोलोसल, ये सब होते हैं, ठीक है. एक होती है कोहोल पेंसिल्स व्हिच आर द लॉन्गर स्टे, तो यू कैन ट्राई दोज. या फिर अगर नहीं करती वो भी स्टे, तो गो फॉर जेल लाइनर्स, जो हम ऊपर जेल लाइनर लगाते हैं, ठीक है, उसी को ही आप एज अ काजल भी यूज कर सकते हो, एंड दे आर वेरी स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, एवरीथिंग. Okay. Yes. Thank you so much. Welcome. Yes, Anshu. Hello, ma'am. I think I've already asked my question. Okay, Anshu Srivastava, आपका अभी भी hands up है, तो मैंने पूछा. Okay, I think we are done. Ma'am. Yes, you can unmute yourself. मैम देखिए, मैंने ये वाला लगाया हुआ है कलर बाग का. हाँ मैम, ये शेड है फैशन सिटी 013. और मैम देखिए, लगाने पे बहुत डिफरेंट कलर आता है, बट है ये वाला शेड. तो आप अपने लिप्स पे पहले फाउंडेशन, जैसे मैंने बताया ना, वैसे करो आप. एवरीडे में तो जैसे एवरीडे में तो फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ, तब मैम. तो फिर तो अलग ही आएगा ऑब्वियसली कलर. जो लिप का कलर है हर किसी का अलग अलग आता है. अगर आप थोड़ा टैन लिप्स है, ठीक है, पिगमेंटेड लिप्स हैं, तो फिर अलग आता है. जब लेने जाते हो आप, जब भी आप ये लिपस्टिक लेने जाते हो, तो लिप्स पे ट्राई करो, डोंट ट्राई इट ऑन योर हैंड्स. ये ऑब्वियसली आपके हाथों पे अलग आएगा कलर, और लिप्स पे लगाओगे तो अलग आएगा, क्योंकि जब भी आप लेने जाते हो तो आपको अपने हैंड्स पे वो आपको दिखाएंगे हमेशा. तो जब भी लेने से पहले आस्क देम कि मैं आई विल वेयर इट फर्स्ट, यू कैन गेट इट. नो. यस, थैंक यू मैम. Yes. हेलो मैम. हेलो. नमस्ते. नमस्ते मैम, इतना लगाना जरूरी है?
सब मैंने आपको पहली चीज यही बताई, इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल, ठीक है? नहीं, एक्चुअली मैम मेकअप बॉक्स 2 है, लेकिन मुझे इतना आप जितना बता रहे हो इतना याद ही नहीं रह रहा है। मैं खाली लिपस्टिक और थोड़ी काजल लगाती हूँ। अच्छा, आई नो फर्स्ट टाइम देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सो यू कैन गो टू माय इंस्टाग्राम पेज, उस पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है हर लुक के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो उस पे आप देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स भी सेम जो मैंने प्रोसेस बताया ना वो सब सेम है। बाकी हाँ। अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड और इतना आप नहीं लगाते हो, तो जैसे यू कैन स्किप फाउंडेशन, ठीक है? मैंने अपने नॉर्मल उसमें बताया था बेसिक क्लास में भी कि आप सिर्फ कंसील करके कॉम्पैक्ट से कवर कर सकते हो, जिनको इतना एक्सट्रीम कवरेज नहीं चाहिए फेस पे, ठीक है? गो फॉर थोड़ा सटल आई मेकअप। मैम मैं खाली लिपस्टिक और काजल लगाती हूँ, इतना ज्यादा मैं नहीं लगाती हूँ। So और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और आपका ट्रेनिंग अच्छा है, लेकिन मुझे याद नहीं होता इतना कौन सी क्या लगाऊं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप फिर इंस्टाग्राम पे जाओ, गो टू माय पेज, चेक ऑल द वीडियोस, सो एक दो बार देखोगे ना आपको याद आ जाएगा, एंड जब करने लगोगे तभी याद रहेगा, जब तक देखते रहोगे तो याद नहीं रहता। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस श्वेता। हेलो मैम। हेलो। बहुत अच्छा मेकअप किया, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मैम मैं कोई भी शेड ले लूं फाउंडेशन का, लेकिन मुझको फाउंडेशन सूट नहीं करता, मेरे स्किन कलर डार्क लगने लगता है। अच्छा जी। यू हैव अ वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड वेरी पिंक टोन। अब पता नहीं वो आपके कैमरे पे कुछ थोड़ा फिल्टर्ड लग रहा है, आई डोंट नो। नहीं मैम, नो फिल्टर। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्शन। सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के आते हैं एज सच उनको कोई पिगमेंटेशन का या ग्रेनेस का इशू नहीं रहता है। जी। तो कौन सा आप ट्राई करो, आप विच ब्रांड यू यूज? मैम मैंने लैक्मी का किया है। अभी तक तो लैक्मी ही किया है बस। आप शुगर का ट्राई कर सकते हो। शुगर कंपनी में ना मोस्टली आते ही फेयर स्किन टोन के हैं फाउंडेशन, एंड ऑलवेज गो फॉर पिंक टोन। जो आपका शेड है ना, ये थोड़ी कश्मीरी स्किन होती है ना, उनका होता है ऐसा, ठीक है? तो इंडियन स्किन टोन्स आर मोर टुवर्ड्स येलो अंडरटोन। अब आप मेरा फेस देखो और अपना फेस देखो, मेरे फेस में एक येलोनेस है, ठीक है? मोस्टली इंडियन स्किन टोन्स आर येलो अंडरटोन, ठीक है? तो अब हमारे यहाँ पे जो फाउंडेशन जो ये इंडियन ब्रांड्स में बनते हैं, तो ये उसको कंसिडर करके ही बनते हैं, ठीक है? सो यू आर मोर ऑफ अ पिंक अंडरटोन। तो आप अपना जैसे मैक हो गया, मैक में मिल सकता है आपको। इनफैक्ट शुगर मैंने बताया, उसमें आप ट्राई करो, ठीक है? तो उसमें देखो कि लगा के यू कैन इजीली डिफरेंशिएट, एक तरफ आप पिंक पकड़ो और दूसरी तरफ येलो, तो पता चल जाएगा आपको कि दिस इज पिंक एंड विच विल गो फॉर यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। यस स्वाति। जिनका क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं वो अपना हैंड्स डाउन कर लें। हाँ जी। हेलो मैम। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेकअप पूरा बेस तैयार मतलब टाइम देते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा गैप करके मैं प्राइमर और फाउंडेशन में जब गैप करके प्रॉपर उसको सेट हो जाता है तो ठीक रहता है। बट कभी कभी जल्दी में होता है कि थोड़ा बस फाउंडेशन और लूज पाउडर यूज करके और जाएं, तो थोड़े टाइम बाद फिर वो क्रैक्स आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो प्रॉपर पूरा मेकअप करना चाहिए या जल्दी जल्दी नहीं यूज करना चाहिए। देखो मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं तो बहुत जल्दी में हमेशा करती हूँ, और मैं फुल फेस मेकअप रेयरली कभी करती हूँ बहुत। लाइक आई नेवर यूज फाउंडेशंस, ठीक है, जब तक बहुत ओकेजन्स ना हो। सो व्हाट आई फील इज, एक तो आप स्किन केयर तो जरूर करो, ठीक है, रिगार्डलेस आप शरीर में हो या जो भी है, ठीक है? और मॉइस्चराइज अच्छे से करोगे ना, प्राइमर अच्छे से लगाओ, बस उसके बाद तो आप अगर सिर्फ कंसीलर भी लगा रहे हो और कॉम्पैक्ट से लॉक भी कर रहे हो तो इट्स इनफ, एंड इतना ऐसा क्रीज लाइन का इशू नहीं रहता अनलेस अंटिल यू आर नॉट ब्लेंडिंग इट प्रॉपर्ली, ठीक है? अगर आप हरी में आप अपने फिंगर्स से ही चाहे ब्लेंड करो आप अच्छे से, क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंडेड नहीं होगा तो 1 घंटे तक तो अच्छा लगेगा, उसके बाद वो ग्रे पड़ना शुरू हो जाएगा, लाइंस दिखने लग जाएंगी। आई थिंक यही मुझे थोड़ा सा मैंने नोटिस किया, क्योंकि जब बार बार करते हैं तो एक्सपीरियंस आता है। आपने जैसे बताया था तो मैंने ये देखा कि जब वो प्रॉपर ब्लेंड हुआ तो ठीक है, अदरवाइज जिस दिन जल्दी जल्दी बस ऐसे जल्दी से चले गए और फिर कुछ टाइम बाद वो क्रैक्स आ गए। हाँ वही रहता है, क्योंकि मेन ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एक चीज ये भी है कि अगर मॉइस्चराइजर या आपने CTM प्रॉपर किया बट काफी टाइम बाद जब हम मेकअप कर रहे हैं तो हमें दोबारा उसको यूज कर लेना चाहिए, या गैप से कुछ इसका भी स्किन केयर का कह रहे हो आप? हाँ, तो CTM पूरा जरूरत नहीं है करने की। अगर आप जैसे मॉर्निंग में कर चुके हो, आपको आफ्टरनून में कहीं जाना है, तो जस्ट मॉइस्चराइज योर फेस वेल, दैट्स इट, इतना काफी है। ठीक है, और मे बी यूज अ सीरम अगर आपको ड्राइनेस का इशू है, और फेस ऑयल में भी। ओके, या थैंक यू मैम। यस प्रीति। हेलो। हेलो। हाँ, एक्चुअली मैं आप ये आईब्रो पेंसिल के बारे में पूछना चाहती थी, आपने कौन सी यूज की है? इट्स फ्रॉम शुगर ब्रांड की है ये। मैं आपको 2-3 सजेस्ट कर देती हूँ, शुगर, नायका, इनफैक्ट, और कौन सी होती है, NYX, तीनों की बहुत अच्छी है। ओके। और एक्चुअली क्या है कि मैं ज्यादा मतलब अगर मैंने कॉम्पैक्ट भी ज्यादा यूज कर लेती हूँ तो मेरे ये एक्ने मतलब निकलने लग जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा, एक्ने कंसर्न है, ओके। तो देखो यार, एक तो पहले अपना एक्ने ठीक करो, क्योंकि मैं अभी तक मैं एक्चुअली क्या मैं मेकअप करती नहीं हूँ। अभी इधर आई हूँ तो थोड़ा ट्राई करने लगी हूँ, तो मैंने बस 1-2 बार ही किया तो मेरे ऐसे निकलने चालू हो गए, तो फिर मैंने अवॉइड ही करना चालू कर दिया। हाँ, इट हैपेंस व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू इट ना, तो एकदम आप लगाने लग जाते हो केमिकल प्रोडक्ट्स, तो कई लोगों को नहीं सूट करते। तो पहले आप ये एक्ने इशू को, कंसर्न को, मतलब जहाँ एक्ने है वहां मत लगाओ ऑब्वियसली। अंडर आईज को कर सकते हो थोड़ा बहुत कंसील, जस्ट टू गिव दैट प्रेजेंटेबल लुक। ठीक है, जहाँ एक्ने है वहां तो बिल्कुल मत लगाओ फिर आप। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो, लिपस्टिक लगा ली, आई मेकअप अच्छा कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। मैं सिर्फ लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ। आई मेकअप भी आप अच्छा कर सकते हो, डार्क सर्कल्स को थोड़ा हाइड करके, आपके हैं नहीं वैसे इतने, बट थोड़ा बहुत डार्कनेस हाइड करके। थैंक यू। यस डिम्पी, आपका हैंड रेज नहीं होता। यस, how are you? I am good. How are you? I'm fine, thank you, ma'am. Ma'am, I have already a very sharp nose, so should I do contouring also here? Okay, so as I can see, जिनकी शार्प नोज होती है ना, तो आप ऊपर से मत करो, यहाँ से मत करो, आपको मुझे आगे से लग रहा है थोड़ा बहुत, तो बस इतनी जगह पे आप कॉन्टोर करो, एंड मेक श्योर आगे से लॉक जरूर करना, जो वी बताया था। हाँ, तो अगेन मैं वही कह रही हूँ, जहाँ रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्ट जरूरत है अप्लाई करने की, हर जगह नहीं नीड होती। ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू द कमेंट सेक्शन एक बार। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप खुद अनम्यूट कर लो अपने आप को एंड पूछ लो। I think we'd be taking last for Navita. Navita, go ahead. Yes, Navita. Good evening, ma'am. Good evening. मेरा बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं है, बट एक चीज शॉर्टली मुझे कंट्योरिंग, चबी फेस लाइक ना, तो कंट्योरिंग का थोड़ा बताएं कि कंट्योर क्या करना है। एंड लाइक आपका तो ऑलरेडी बहुत स्लिम फेस है, ठीक है, तो आई वुड से कि आप चीक बोन्स कॉन्टोर करो। ठीक है, आप अपनी नोज कॉन्टोर कर सकते हो, क्योंकि एज कम्पेयर टू योर फेस इज वेरी स्लिम एंड नोज थोड़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, तो नोज को आप अच्छे से कॉन्टोर करो एंड योर जॉ लाइन, दैट इज ऑल फॉर यू, और नीड ही नहीं है। एक काजल सूट नहीं करता मैम, काजल जैसे यूज किया आईज मतलब मुझे ही अच्छा फील नहीं होता है, बहुत अलग सा दिखने लग जाता है। तो मत लगाओ, कोई मैंडेटरी थोड़ी काजल लगाना। काजल अगर जैसे ब्लैक सूट नहीं करो तो आप एक बार ट्राई करो, गो फॉर व्हाइट या न्यूड काजल, इट लुक्स वेरी गुड, एक बार ट्राई करना। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मुझे ये पूछना था कि जो मेरा फोरहेड है ना, तो फोरहेड में ये जो मेरा छोटा सा है, तो मुझे बहुत जब मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है ये फोरहेड अपना। यार देखो, आपका फेस के अकॉर्डिंग अब मेकअप से कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप हेयर स्टाइलिंग ऐसे करो कि आपका थोड़ा फोरहेड कवर होए ऊपर से, जी है ना, तो वो आप हेयर स्टाइलिंग देख सकते हो, थोड़ा अच्छा आगे से आए कुछ भी हेयर स्टाइल, तो आपका थोड़ा फेस सिमेट्रिकल लगेगा।
जी अदरवाइज मेकअप में आज सच कुछ नहीं है नीडेड कि आप कॉन्टोर भी करो तो कम लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके मिस्टर इंद्रानी। Thank you Indrani. so much. All Indrani. right, ladies, I think we should let Asmita go Yes, now. No, okay. only one. Let's अस्मिता just मुझे take पूछना है। questions. हाँ जी, okay, okay. Yes. मुझे पूछना है अस्मिता। हाँ जी, हाँ जी। हाय, एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा पफी आईज है, तो मुझे इसका कैसे मैं हाइड करूँ इसे? आप ये तो वैसे अपनी डर्मैट से सजेस्ट करो कि पफी आईज क्यों रहता है इतना। वैसे अगर आपको डीप पफ करनी है आईज तो वो आते हैं, कैफीन सॉल्यूशंस आते हैं। ओके। या फिर आइस रोलर्स भी आते हैं, तो रात को आप अच्छे से स्किन केयर करने के बाद आइस रोलर से मसाज करो आइस पे, ताकि अगले दिन थोड़ी कम पफी दिखे। वो तो मैं करती हूँ। देखो ये ऐसा कंसर्न है तो आप अपनी डर्मैट से सजेस्ट करो, और मे बी यू कैन ट्राई कैफीन सॉल्यूशन। मेरे को तो बहुत हेल्प किया था। इट्स फ्रॉम अ ब्रांड द ऑर्डिनरी, उसका कैफीन सॉल्यूशन आता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर योर डार्क सर्कल्स एंड इवन टू डीप पफ योर आईज। थैंक यू। Welcome. All right, ladies, I think it's time to let Asmita breathe and have a good evening, and she has a lot of clients to take care of. So I'm sharing her Instagram and Facebook details into the chat box. You guys know what to do. Make sure you follow her and reach out to her in case you have any queries. Thank you so much, Asmita. It was an absolute pleasure having you, and you look absolutely stunning. Thank you, and I'm sure the ladies had a good time. Thank you, guys. Bye bye. Come in, touch.